पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे. Your notes are always inspiring. We have at 10:30 our Honorable PM will be live and we will join that session. But few minutes we are having left. I find that we will complete some more segments. I will tell you, definition of a poet because today we are honoring our national song that's written by Chatterjee, a poet and a writer, a great writer of the times. एक पॉइंट जो होता है एक कौम की आंखें होता है एज पर द फिलॉसफी डेफिनेशन. पॉइंट को कौम की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस होती है उन पे नजर होती है. आदाब, अस्सलाम वालेकुम and a warm welcome to the commemoration of the 150th anniversary of our national song Vande Mataram. At the very outset, it's my pleasure and honor to welcome the chief guest for the day, Shri Shantanu Ji, Additional Chief Secretary, Higher Education Department. We have also been joined by dignitaries from the district administration. We also have dignitaries from the School Education Department, faculty from my own college and from the School Education Department. All have joined in this program and a warm welcome to all of you. It is a matter of deep pride for all of us as we celebrate the 150th commemoration of the national song Vande Mataram. As we were hearing just now to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Ji Modi, and he was talking about the history of Vande Mataram, and earlier in this auditorium we played a picture depicting the history of Vande Mataram. So for each Indian, this day is a special day as we embark the journey of celebrating and cherishing the past history of independence. And one of the very, very important things that was concerned with that was the national song, and it was as popular as the national anthem. And today, as we all gather here in this teacher education institution, it is a duty of this institution to celebrate and cherish all days of national importance, because teachers are the cornerstones of a nation's building as they are training and building up the blocks of the nation, that is the youth. So today, as the principal of this host college, I take deep pride in organizing this event, and I am deeply honored that Shri Shantanu Ji, who is always celebrating and always saying that nation first, I think today is a great day for him as he will address us and as he will speak about this day, because such things, such events are very, very close to his heart. Sir, thank you very much for joining and for being a part of this celebration. We warmly welcome all the other dignitaries also, and I am sure each one of us will have a strong message for all the nation builders who have fought the freedom struggle and who have placed a very important role in the history of the Indian Constitution. So we carry the legacy forward by celebrating it and commemorating it. Thank you. Professor Dr. Sriman my friend and classmate and journalist, Mr. Zubair Saab, Chief Education Officer, Senior Industry, respected audience, dear students, good morning to all of you. Today we have gathered here for an important segment, to commemorate this
that why we have been here, why we have been, we are being celebrating this, that is the Vande Mataram, the journey of a national sentiment. शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके पास बेमिसाल है मेरा धन, मेरा धन है वतन है मेरा धन, मेरा धन जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। आज का सबसे अच्छा विषय यही संबोधन यही सब तरीका होगा वंदे मातरम। मुझे याद है बचपन में हम लोग कोई भी किताब या कॉपी होती थी स्कूल की, तो उसके लेफ्ट पेज पे रहता था, मतलब जो कवर पेज होता है उसके अंदर की तरफ होता था नेशनल एंथम जनगण मन, और जो बैक साइड होता है उसके बैक साइड में होता था कवर पेज पे ये नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। और आपको याद होगा जो कि पहले जैसे रेडियो खोलो आप, रेडियो में सबसे पहले वंदे मातरम में बजता था, है ना, जो पुराने लोग इनको रेडियो सुनते होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बचपन से ये बिल्कुल धुन बैठा हुआ था दिमाग में। अभी जैसा कि आप सब लोगों ने सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारा विस्तार में बताया, 1875 में लिखा उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम संस्कृत का शब्द है, बंकिम का अर्थ होता है बहुत सुंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत खुश, प्रसन्नचित। यही ऐसा शब्द है इसमें बहुत सारी मीनिंग उसमें शामिल है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और मेरा यही सौभाग्य है कि वो जहाँ पर बैठ कर उन्होंने इस आनंदमठ को लिखा था जिस घर में, उस घर में मैं जा चुका हूँ। ये झारखंड में जगह है, यानी उस समय एक्चुअली आपको पता ही होगा 1911 तक पूरा बंगाल एक ही स्टेट हुआ करता था। जो बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा जिसको कहते हैं, ये 4 स्टेट अभी हो गए हैं, तब एक ही स्टेट था। 1911 में जाकर के ये अलग हो गया, बंगाल पश्चिम बंगाल अलग हुआ। 1905 में सब जानते हैं, पहले तो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल अलग हुआ। उसके बाद 1911 में हमारे विद इन इंडिया फिर स्टेट्स अलग हुए। 1935 में फिर उड़ीसा अलग हुआ, बिहार झारखंड एक था, और फिर भी जाकर के
15, 16, 25 साल पहले फिर झारखंड अलग हुआ। तो झारखंड में जगह है जहाँ पर बंकी बाबू ने आनंद लिखा। उसके थोड़े साल पहले एक्चुअली अकाल भी आया था, फैमिली आया था वहाँ बंगाल में, और एक सन्यासी रेगुलियन हुआ। सन्यासी रेगुलियन में जो सन्यासी लोग थे जो स्पिरिचुअल पैट्रियोटिज्म को बढ़ावा देते थे, स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू सूफी मूवमेंट जैसे होता है उस तरीके का मूवमेंट करके और पैट्रियोटिज्म कैसे बढ़ावा दें, उससे इंस्पायर होकर के बंकिम चंद्र रेड्डी ने एक नॉवल लिखा आनंद मठ, और उसी आनंद मठ के अंदर ये गीत है वंदे मातरम। बट देखिए कई बार कुछ ऐसी बड़ी रचना होती है जो टाइमलेस होती है और प्लेसलेस भी होती है, यानी कि वो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेस एंड टाइम। ये एक ऐसा गीत है, अगर हम फर्स्ट नहीं देखें तो 68 सेकंड्स में हम लोगों ने गाया, फर्स्ट टू पार्ट पैराग्राफ है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1950 में अडॉप्ट किया नेशनल सॉन्ग, जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उन्होंने इसको अडॉप्ट किया कि इसको लिया जाए। उतना क्वेश्चन खाली हम देखें उसमें जो जो चीज़ें हैं वो कहीं भी किसी भी देश के लिए लागू होते हैं, किसी भी समय के लिए लागू होते हैं। और मैं यहाँ पर बैठे बैठे देख रहा था टाइम प्लेस करते हुए कि ऐसे कितने कंट्रीज वर्ल्ड में हैं जो अपने देश को, अपने लैंड को मदरलैंड कहते हैं। तो ज़्यादातर कंट्री में जो ज़्यादातर कंट्रीज वही हैं जो अपने लैंड को मदरलैंड कहते हैं। कुछ हैं जो फादरलैंड कहते हैं, बट ज़्यादातर मदरलैंड कहते हैं, मातृभूमि इसको कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में। तो ऑफकोर्स बड़े कंट्रीज में इंडिया है, रशिया है, और भी है बहुत सारे, मैं लिस्ट देख ही रहा था। ये कंसेप्ट है बेसिकली, क्योंकि हम लोग बच्चा जब जन्म लेता है तो नेचुरली पहले तो 9 महीने माँ के गर्भ में है, उसके बाद शुरू के काफ़ी सालों तक सबसे ज़्यादा अटैचमेंट माँ से ही होता है उसको, और वो जो अटैचमेंट है वही अटैचमेंट मदर लैंड के साथ एक विजुलाइज किया गया है। और इस पर्टिकुलर सॉन्ग में जो नेशनल सॉन्ग में लिखा गया, बंकी बाबू ने लिखा, उसमें उन्होंने विजुलाइज किया कि हमारा मदरलैंड कैसा हो, और ये जैसे सुजलाम जिसके जल अच्छे हों, सुफलाम जिसके फल अच्छे हों, जिसमें मलिया शीतलाम ठंडी हवा जो बहती हो। तो अब नेचर और सारा इनफैक्ट आज गवर्नमेंट में मैं इसको रिलेट कर रहा था, हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे इसमें, चाहे वाटर डिपार्टमेंट हो, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हो, ऑर्चर्ड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, वो सब के बारे में है कि सब अच्छे हैं, सब सुखदाम वरदाम, जिसकी भाषा अच्छी हो, सुहासिनी हो, यानी वो एक कंसेप्ट है कि मदरलैंड में ये सब चीज़ें हों। विजुलाइजेशन, जैसे अभी हम लोग विजन 2047 की बात करते हैं कि 2047 में हमारा देश कैसा होगा, तो हर सेक्टर अपना को विजुलाइज करता है। वैसे विजुलाइजेशन सोचिए आज से 150 साल पहले बंकिम चंद्र ने लिखा। दूसरा मुझे ये भी अच्छा लगा कि जो इसका जो म्यूजिक है, अपना जो लोग म्यूजिक के शौकीन हैं उन्होंने इसको फील किया होगा, तो वो भी जादूनाथ भट्टाचार्य भी थे जिन्होंने इस म्यूजिक कंपोज किया था, तो उनको भी हम लोग याद करना चाहिए। और उसके बाद जब आज़ादी के बाद 1950 में जो हमारे बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर हुआ करते हेमंत मुखर्जी, उन्होंने फिर उसको नए तरीके से म्यूजिक निकाला, जिसको लता मंगेशकर जी ने गाया है। वो थोड़ा लंबा है, लंबा ऐसे वंदे मातरम ऐसे करके जो, तो ये वाला जो है ये लता जी ने गाया था, इसका हेमंत मुखर्जी ने उसको म्यूजिक कंपोज किया था। बट ओरिजिनल जादूनाथ भट्टाचार्य जी का ये था जो हम लोग स्टैंडर्ड हम लोग गाते हैं, जिसको कि नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया। तो इतना बढ़िया इसका म्यूजिक सुन के ऐसा लगता है कि बड़ा शांति, अच्छी सुकून मिलता है। और बाद में फिर ए.आर. रहमान ने भी फिर उसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करके और डिफरेंट करके गाया है। ए.आर. रहमान मुझे याद आपको सुनाता तो कहने का मतलब है कि इसको हमेशा ऐसा इंस्पायरिंग सॉन्ग सबको इंस्पायर करता है। तो मैं इतने कहना चाहूँगा कि आज हम लोग इसको एक तो ऑफकोर्स इससे एक प्रेरणा ये मिलती है कि हमारी जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे लोग जिन्होंने अच्छा बड़ा काम किया, महान काम किया, उनको हमेशा याद रखें, उनसे इंस्पिरेशन लेते रहें। एक नंबर 1, नंबर 2 उनका जो सपना था, उनका जो विजन था, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो उन्होंने टारगेट दिया हुआ है कि हमारे जल ऑब्जेक्टिव है, वाटर पॉल्यूशन, वाटर स्कैर्सिटी, तो सुजलाम से शुरू किया, फिर सुफलाम फ्रूट्स में भी क्या क्या, और वो उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में अपने काम करते रहे। और ये मैं एम रियली थैंकफुल कि ये पूरा एक मिशन जैसे कैंपेन जैसे भी हुआ है, पूरे देश में हो रहा है, ताकि एक अच्छी चीज़ हमारे पास हमेशा से रही है, बट उसको हम ऐसे मौके पर ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ज़्यादा उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा किया गया है। और आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज सीमा जी और उनकी पूरी टीम जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे।
और बहुत शॉर्ट नोटिस पर मुझे तो इनफैक्ट कल ही पता चला कि मुझे यहाँ पे आना है। इसका जो मेन स्टेट का जो मेन प्रोग्राम है वो वहाँ पे आपको पता है जो जम्मू में हो रहा है, यूटी का मेन प्रोग्राम जम्मू में हो रहा है जिसमें ऑनरेबल जी साहब हैं। उसके अलावा डिफरेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में, गवर्नमेंट ऑफिस में, वहाँ पर भी एक साथ ये सब प्रोग्राम चल रहा है और ऑनरेबल पीएम साहब ने कोई एड्रेस सब लोगों ने बैठ करके एक साथ सुना। तो ये सब चीज़ें भी आपस में जोड़ती हैं सब। मतलब एक तो एक बहाना मिल जाता है, वंदे मातरम अच्छी चीज़ है ही, और उसके एक और साइड इफेक्ट ये, अच्छा साइड इफेक्ट ये है कि हम इस बहाने सब इकट्ठे होते हैं और एक अच्छे थॉट के साथ और एक अच्छे रोड मैप, मेंटली रोड मैप बनाते हैं कि आगे हमें क्या करना है। इस सब शब्दों के साथ बहुत बहुत नमस्कार।